Now class 12 we are focusing on the oxidation state of d block elements. Now if you see that the transition elements exhibit several oxidation state, that you must understand. Okay, except few exceptionals are there that they have the transition state more than one oxidation shows variable valencies in their compounds. Like what I want to say that I just want to discuss with certain examples in that conditions where you have an exceptional cases where transition metals exhibits more than one oxidation shows, and also shows along with that a variable valency is also in their compounds. So there is a best example in our course is copper. You know that copper is an example which exhibits oxidation state. If you remember, we have seen +1, and we have also seen the other oxidation state is +2. If you remember the +1, we always say it is cuprous, and +2 is cupric, if you remember this part. So if from your childhood, now this is the +1 is indicating that it has a monovalency, and +2 is indicating that they are bivalency, है ना. तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट भी है और प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ ये वैलेंसी भी वही शो कर रही है, जबकि हर चीज़ पे ये लागू नहीं होता है ना. बहुत सी जगह हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फ़र्क है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वैलेंसी जो है उनकी शायद एक ही रही हो. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑक्सीडेशन स्टेट्स पार्ट दैट हाउ इज़ बीन देयर. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कॉपर लेके चल रहे हैं, जैसे ये आप ले रहे हैं, तो अगर कोई कंपाउंड ये Cl के साथ बनाता है तो ये CuCl बनाएगा, है ना. अगर आप इसी का सॉल्ट देखें, अगर कोई सॉल्ट बना रहा है तो ये CuCl2 बनाएगा, है ना. सो दिस इज़ द केस. So now the question arises, why the transition elements have various or several oxidation states, and because of that their characteristics properties of these elements are also changing. Now different oxidation states are there, and it's not necessary that all the oxidation state, if the particular compound is showing, then it will have a what you can say a stable, you can say they are having a stable oxidation state. Maybe possible there are certain oxidation states that are stable and some are unstable also, some are very rarely occurring. So we learn that how this happens. First of all, I want to just show you different transition series from your book, and from there different the oxidation states of that particular series. Now in a book, the first transition series we have already discussed when it's related to your 3D, 3K, 3D range है, तो ये first transition series है. तो these are the elements, and you can see varieties of oxidation states they are showing, right. Like Mn is showing the maximum oxidation number, that is +7. So this way you can see. Now let's come to if this sign has been there, it's been, what does it mean? It's mean they are particular oxidation number, if it is there and it is holding this asterisk sign, so it may be unstable or they are rarely occurring. That's why this asterisk sign is being placed over here in your book. So let's talk about the second transition series. Just see about these particular elements in the second transition series, and you can see their oxidation numbers also. All are metals, and they are you're getting in the positive numbers. But in the third transition series, just see over here you're getting a negative oxidation number also, or oxidation state, and you can see their different oxidations number. Now we'll focus that why this particular oxidation numbers arises. Now children, if you remember the electronic configuration of d block element, then this is the scenario: n-1 d n-10. Now what does it mean? Suppose if we are talking about the first transition series, if n is 4, so it's 4s, मानने की बात है यहाँ 2 आ रहा है, और यहाँ पे फिर n-1 क्या हो जाएगा, 3d1 हो सकता है, 3d10 तक भी जा सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, 3d10 से लेके 4s 2 तक जा सकता है ना. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम, you can say the range. Now if you see the focusing on the after electronic configuration, we see the energies level also. If you see about this part, we have these types of orbitals. n-1 d आ रहा है, और एक है हमारे पास ns orbital. Now these two orbitals, if you see, these two orbitals have a very close energy, and they are not much difference between them.
right? So transitional elements में both these orbitals are available for the bond formation, right? ये दोनों ही important हैं और ये दोनों ही bond formation में help करते हैं orbitals। और अब हम ये देखेंगे कि कब हमें +1 +2 मिलती है और कैसे हमें आगे हायर ऑक्सीडेशन, अब इन्हीं लोगों की वजह से ही we get different types of oxidation numbers like +1 we are getting, +2 we are getting, then we are getting higher oxidation state में आ जाएं +3 +4 +5 +6 we are getting, और rarely occurring में +7 भी होती, +8 भी है, right? So these are the oxidation numbers or states that have been there. Now when we are getting what type of oxidation states, अभी थोड़ा सा समझ लो, ये थोड़ा सा आपका दो पोर्शन अलग है। ये हायर एनर्जीज़ के लेवल पे रहता है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, और ये आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ठीक है। अब ये कब अराइज होती है, अब कैसे हमारे पास ये आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, तो दैट वी हैव टू फोकस, right? Now let's focus on this part. Basically what happens when we are using this electrons, means the electrons that are present in n-1 d orbitals, and you know that we are using this particular orbital and this orbital also. So electrons that are being present in this, that is n-1 d electrons, और जो दूसरा वाला कंडीशन होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ns, वो भाई उसके ऑर्बिटल्स हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो ns इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन इन द एक्साइटेड स्टेट, अब बेसिकली हो क्या रहा है, जो हमारे पास ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही हैं +3 की, +4 की, +5 की, +6 की, तो बेसिकली हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, और उनको हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ हद तक ऐड कर दें ns इलेक्ट्रॉन्स वाली केस में ना, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। अब होता क्या है एक्साइटेड स्टेट पे, बेसिकली क्योंकि सारा खेल होता है एक्साइटमेंट स्टेट का, जब एक्साइटेड स्टेट होती है then what happened that we have to focus. So you know that each and every atom is going for the ground state, जो उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो उसका ग्राउंड स्टेट सिनेरियो होता है, और जब वो एक्साइटेड स्टेट पर होता है तब उससे आपकी बहुत हद तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती है चेंजेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल से छोड़ के दूसरे ऑर्बिटल में जाता है ना। सो व्हाट हैपन इन द एक्साइटेड स्टेट, दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स n-1 d इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये दे पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, दे आर फ्री टू, ये बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, दे आर फ्री टू फॉर द टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, and because of it atoms shows variety of oxidation state, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जब ये पार्टिसिपेट करते हैं एक्साइटेड स्टेट तब हमें एक अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे हम इसको लेके चल रहे हैं 21 इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है। Now many times you have written the electronic configuration of scandium, Sc से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस पर्टिकुलर अगर एलिमेंट को आप देखते हैं तो इसका +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ये कब हुआ आपका +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको समझना है जब ये पर्टिकुलर एलिमेंट 4s इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है सिर्फ, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, तब उस कंडीशन में वी हैव द ऑक्सीडेशन स्टेटस +2। ये तब की बात हो रही है जब आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से देखते हैं। बेसिकली हम इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स पे ही और उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। तो अगर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन 4s के यूज़ करे जा रहे हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रॉन 3d का भी यूज़ कर रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन 4s के भी यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 3+ हो जाएगी, मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने सिर्फ 4s इलेक्ट्रॉन्स को, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके 4s हैं उनको आपने यूज़ करा, तो आप देख रहे हैं ना कि हाउ यू आर गेटिंग अ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हेन यू आर गेटिंग अ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट।
सो सिमिलरली यू कैन टेक सम अदर एग्जांपल ऑल्सो, जैसे आप है ना उसका आगे आप बढ़ जाएं, आप टाइटेनियम को भी यूज़ कर सकते हैं। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 22 इसका है। अब इसमें हम लास्ट का लिख देते हैं, 3d2 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम टाइटेनियम के केस में देखते हैं तो ये भी हमें वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ये हमें +2 शो करेगा, +3 शो करेगा और +4 शो करेगा। अभी कब ऐसी कंडीशन होगी, जब ये सिर्फ 4s2 के इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर रहा है तो ये +2 ऑक्सीडेशन लेगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 1 इलेक्ट्रॉन इसके तो +3। अगर ये 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो क्या है इसका 4 +4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दिस इज़ द यूज़ दैट हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स यू आर यूजिंग फ्रॉम द D's and your S orbitals, so how much they are participating in the bond formation, so that particular will be your oxidation state. I think now you are able to know how we are detecting or calculating the oxidation state for a particular element. Now let's talk about the important points from the oxidation states which we have calculated. तो जब साइंटिस्ट ने निकाला गया तो सबसे पहली चीज़ इसमें देखी गई कि आपने जो जितनी सीरीज़ देखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरीज़, सबसे पहले सीरीज़ से हम बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ एंड यू हैव टू सी दैट द most common oxidation state that was arising in the elements of the first transition series except your scandium, it was +2. And you know that +2 oxidation state, just now we have seen that it arises when you lose 2 electrons from the 4s, है ना. जो 4s के में 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप लूज़ करते थे, तब आपका ये जो कंडीशन थी आपकी अराइज कर रही थी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है. अब स्कैंडियम के केस में थोड़ा सा डिफरेंट ये हो जाता है कि इसमें जो है वो 4s से जब वो लूज़ करता है तो इसमें D वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है. So that thing you have to see. Then we come across a second point that you are seeing the transition metals. If you talk about the transition elements, the most common oxidation states in them in metals are +2 and +3 oxidation state. अगर जो भी +2 और +3 बना रहा है वो ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है. दे विल फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स. बट इफ़ यू सी ऑन द अदर हैंड, इफ़ दे आर हैविंग अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर जो भी जिन एलिमेंट्स की आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखती है वो लोग ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है. यानी +2 और +3 वाले जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट जिन एलिमेंट्स के होंगे वो बेसिकली आपके आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे. लेकिन आप ऊपर जाएंगे, आप जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो वो एलिमेंट्स आपके कोवेलेंट बनाएंगे, ठीक है. कोवेलेंट कंपाउंड्स जब एलिमेंट्स बनाते हैं दे फॉर्म विद लाइक फ्लोरीन और ऑक्सीजन्स, है ना. दे आर क्वाइट केपेबल ऑफ मेकिंग विद देम. एंड देर आर सर्टन अदर कंपाउंड, जैसे ये पर मैग्नेट आयंस होते हैं, ये लोग भी एक बेस्ट एग्जांपल है इस कंडीशन में आना. अब हम दूसरी कंडीशन आते हैं विद द ग्रुप, विद इन अ ग्रुप. अगर हम कोई पर्टिकुलर ग्रुप को टैली कर रहे हैं और वहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं तो क्या होता है. तो हम देखते हैं, आप देखते हो जब आप ग्रुप में मूव करते हो, व्हेन यू मूविंग इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, द एटॉमिक नंबर इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है. तो ग्रुप में जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है तो उस कंडीशन में याद रखना कि जो आपका विद इन द ग्रुप द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द विद द एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो भी क्या होगी, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट विल ऑल्सो इंक्रीजेज. लेट्स टॉक अबाउट विद एन एग्जाम्पल. जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, ठीक है. आयरन जो होता है ग्रुप 8 का मेंबर है, तो उसकी जो है वो अगर हम देखते हैं कि उसी ग्रुप में और भी एलिमेंट्स हैं, आयरन पहला मेंबर हो जाता है ग्रुप 8 का. Now children you can see this is group 8. I have written few elements. जैसे आयरन हम देखा पहला मेंबर है और नीचे जाते हैं तो ऑस्मियम तक आ रहा है. एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग. सो व्हाट डज दिस पर्टिकुलर थिंग व्हेन यू मूव डाउन इन अ ग्रुप दैट एटॉमिक नंबर ऑटोमेटिकली यू आर सीइंग इट इज़ बीन इंक्रीजिंग. तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो भी इंक्रीज करता है. अगर हम इसमें देखें तो अगर हम आयरन पहला मेंबर है उसको देख के देखते हैं तो इस कंडीशन में इसकी +2 है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है. +3 भी इसकी आ रही, मतलब ये थोड़ी सी स्टेबल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट
स्टेट्स होते हैं, वैसे तो +1 भी है, +6 भी है, लेकिन ये थोड़ी स्टेबल आपकी और कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, ठीक है। बट अगर हम रुथेनियम की और ऑस्मियम की जाते हैं तो इसमें हमारे जो कॉमन कंपाउंड जो ईजिली बना सकते हैं वो आपके +4 है, +6 है, +8 है। तो आप देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी बढ़ रही है और आपको स्टेबल कंपाउंड्स भी मिल जाते हैं। मतलब इस ऑक्सीडेशन स्टेट पर आप आराम से कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है, इसमें हम कुछ और देख देते हैं। जैसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो आपको 8 मिलती है, इससे ऊपर नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 8 है आपकी, ठीक है। वी हैव ऑल्सो हैव द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑल्सो। तो जैसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हाईएस्ट हमने क्या देखी ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी आ रही है दैट इज़ +8, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और लोएस्ट जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम देखते हैं वो हमारी +1 भी होती है और 0 तक होती है। जैसे निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने बनाया था, ये निकल को आप देख के चलते थे तो आप इसमें वैल्यू निकालते थे इसकी ना, तो आपने देखा था 0 आती थी वैल्यू, तो 0 वैल्यू भी आ रही है निकल की। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बता रही हूँ। नाउ नेक्स्ट अराइजेज द स्टेबिलिटी ऑफ अ गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर आर ट्रांजिशन मेटल्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एलिमेंट टू विच इट इज़ कंबाइनिंग। तो वो किस एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है वो भी बहुत डिपेंड करता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी में। सो देर आर फ्यू पॉइंट्स विच आई हैव डिस्कस, देर आर अदर पॉइंट्स ऑल्सो। सो आई थिंक a small idea of oxidation state is been clear to you. Now please practice it, it's an important topic, most of the questions are asked, एक रीजनिंग फॉर्म में भी आता है इसमें से, ठीक है।